రైట్ అండి. సో, వెల్కమ్ టు ధృవ హిందీ అకాడమీ. సో, దిస్ ఈస్ రాజు సార్. సో, మనకి ధృవ హిందీ అకాడమీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ఛానల్ ద్వారా సో, మనకి హిందీకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో పూర్తిగా గురుకుల, పీజీటీకి సంబంధించి, టీజీటీకి సంబంధించినటువంటి దాంతో పాటుగా మనకి డీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి భాషా శిక్షణ. సో, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే స్టేట్ ఫేమ్ ఫ్యాకల్టీ జగదీష్ సార్ ద్వారా మనం ధృవ హిందీ అకాడమీ ద్వారా అందిస్తున్నాము. దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం గురించి మీకు జగదీష్ సార్ మాట్లాడతారు. ఒకసారి జగదీష్ సార్ మాట్లాడతారు, వినండి. नमस्ते, सभी को प्रणाम और प्यारे अध्यापक गण। मेरा नाम जगदीश जिंदम है। आप लोग मुझसे भलीभांति परिचित हो। हम लोग अब सभी बच्चों को सभी तरह से मतलब एक तरह से बहुत सारे बच्चे अपने गाँव से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर जो है हैदराबाद तक आकर पढ़ाई करें, फिर उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर ध्रुव अकेडमी राजू सर के द्वारा मैं ये हमारी हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित कक्षाओं को आप तक पहुंचाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप जैसे जो भी जितने भी हिंदी अध्यापक बनना चाहते हैं उन सबके लिए फायदा हो, उसी को ध्यान में रखकर हम ये कक्षाएं आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए आप सबका ध्रुव हिंदी अकादमी में फिर से मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। రైట్ అండి. సో, మనకి ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి హిందీ భాషా శిక్షణని జగదీష్ సార్ ద్వారా మన ధృవ హిందీ అకాడమీ యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్ కి సంబంధించినటువంటి కోర్స్ ని అతి త్వరలో ధృవ హిందీ అకాడమీ అనేటువంటి మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది. సో, ఇది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వారికి పూర్తిగా డిజిటల్ బోర్డు ద్వారా విత్ పీపీటీస్ అండ్ ఇమేజెస్ తో మీకు అందించడానికి సంపూర్ణమైనటువంటి అవకాశాన్ని జగదీష్ సార్ మీకు అందిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు జగదీష్ సార్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనం ఆల్రెడీ చూసాం. నేను కూడా ఒక విద్యార్థిగా జగదీష్ సార్ క్లాసెస్ విన్నాను. సో, నేను ప్రస్తుతం ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3కి సంబంధించిన కాంపిటేటివ్ ఫ్యాకల్టీ అయినప్పటికీ జగదీష్ సార్ హిందీకి సంబంధించిన మెథడ్స్ అనేటువంటి వాటిని విన్నటువంటి వ్యక్తిగా సో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెథడ్ కి సంబంధించిన సంపూర్ణమైనటువంటి డిజిటల్ క్లాసెస్ ని ధృవ హిందీ అకాడమీ ద్వారా అందించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో జగదీష్ సార్ అండ్ రాజు సార్ మీ ముందుకు వచ్చారండి. మీకు కావలసినటువంటి హిందీ మెథడ్ క్లాసెస్ ని ధృవ అకాడమీ సో యాప్ ద్వారా కోర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోండి. సంపూర్ణమైనటువంటి క్లాసెస్ ని మీరు వినొచ్చు. ఇది మీకు ఒక సువర్ణమైనటువంటి అవకాశం. థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్. सभी को नमस्ते। ध्रुव अकादमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने पिछले वीडियो में एक तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक तरह से सिलेबस से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसके बारे में चर्चा की थी। आज से हम जो है अपना एक तरह से सिलेबस शुरू करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 की चर्चा आज से शुरू करने वाले हैं। तो आप सबका ध्रुव हिंदी अकादमी बोल सकते हैं या सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह अकादमी बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगी। उसमें आप सबका स्वागत है और मैं हूँ जगदीश और आप मेरे द्वारा जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र यह సిలబస్ ఈ సిలబస్ గురించి ఏంటంటే చర్చించుకోబోతున్నాం మనము. ఈ రోజు మనం ఏంటంటే మొట్టమొదటి యూనిట్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. ఈ హిందీ భాషా కా శిక్షణ శాస్త్ర అనే ఒక एक तरह से सिलेबस लो मोटमोटी यूनिट फर्स्ट यूनिट की हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। अब इस हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र इस फर्स्ट यूनिट में क्या फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तरह से देखिए भाषा, इसका अर्थ, स्वरूप, उसकी परिभाषाएं देखेंगे, परिभाषाएं, और साथ में देखेंगे एक तरह से भाषा की प्रकृति या स्वभाव, या इसे हम स्वभाव भी कहते हैं। भाषा का स्वभाव या प्रकृति स्वभाव, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज है। इसके अंतर्गत भाषा का अर्थ, भाषा का स्वरूप,
భాషా की పరిభాష है డెఫినిషన్ ఓకేనా నిర్వచనాలు చూసుకోబోతున్నాము దాని అదే విధంగా ఏంటంటే భాష ఒక ప్రకృతి స్వభావం భాష ఒక స్వభావం ఏంటిది स्वभाव में उसकी विशेषताएं विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आने वाले हमारे ये पॉइंट्स है और भी है इसके अंतर्गत ये फर्स्ट यूनिट में हमारा ये पहला चैप्टर होगा भाषा अर्थ भाषा का स्वरूप भाषा की परिभाषाएं भाषा की प्रकृति और या स्वभाव इसी में जो है भाषा की विशेषताओं के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है लैंग्वेज के क्या है अब इस पूरे भाग में अगर हम कहेंगे इस पूरे भाग में हमें जो है क्या है 1 मार्क कंपलसरी पूछा जा सकता है कभी कभी 2 मार्क्स भी दिया जा सकता है ध्यान रखिए तो कंपलसरी ఎన్ని మార్కులు దీనిపైన రావచ్చు మనకి 2 మార్క్స్ या 1 मार्क क्वेश्चन దీనిపైన రావచ్చు मतलब इस यूनिट 1 में हम सबसे पहले जो है क्या है एक तरह से भाषा का अर्थ भाषा का स्वरूप भाषा की परिभाषाएं और साथ साथ में भाषा का जो है स्वभाव उसकी विशेषताओं के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं इस पे 1 मार्क या जो है मैक्सिमम 2 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है उसके लिए आप लोगों को भी तैयार रहना है तो चलिए हम भाषा का अर्थ भाषा का जो है स्वरूप इस पर जो है चर्चा करेंगे अब तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक तरह से भाषा मानव प्रगति की आधारशिला मानव प्रगति की आधारशिला ध्यान रखिए यहाँ पर इसी में हम देखने वाले ये यूनिट हमारा जो है कौन सा है एक तरह से यूनिट आप लोगों का फर्स्ट यूनिट है ये ध्यान रखना है यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग भाषा के अर्थ परिभाषा प्रकृति का गहन विश्लेषण करने वाले हैं ओके ना तो मतलब इसी यूनिट में हम जो है एक तरह से भाषा की एक तरह से बेसिक चीजें जो शुरू कर रही है मतलब एक तरह से लैंग्वेज क्या है किसे कहते हैं उसका अर्थ क्या है उसकी परिभाषा क्या है उसके जो है एक तरह से विशेषता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे ध्यान रखिए तो सबसे पहले आप सबको ही पता है कि मनुष्य ने जो भी अपना विकास किया है इसके पीछे क्या है बुद्धि तो बुद्धि सभी के पास है आप जानते ही है ना बुद्धि मस्तिष्क सभी के पास है सभी प्राणियों के पास बुद्धि है छोटे से छोटे जीव के पास भी जो है क्या है बुद्धि है उसके पास जो है क्या है इंटेलिजेंसी या फिर हम कह सकते हैं कि जो है उसके पास ब्रेन है लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि का जो प्रयोग किया वो उसका जो डेवलपमेंट या उसका जो विकास हुआ वो भाषा के कारण हुआ है ध्यान रखिए बुद्धि सभी के पास है बिल्ली के पास भी है कुत्ते के पास भी है एक तरह से छोटे से जो तोते के पास भी है या नहीं बुद्धि सभी के ब्रेन सबके पास है लेकिन ब्रेन का उपयोग करने के लिए मनुष्य ने किसका उपयोग किया एक तरह से भाषा को जो है जन्म दिया है ध्यान रखिए उसी भाषा के कारण ही मनुष्य ने जो है अपनी एक तरह से क्या कर ली है प्रगति की है ध्यान रखिए दूसरे पशु पक्षियों के पास दूसरे जानवरों के पास बुद्धि है लेकिन उनके पास भाषा नहीं है उनकी भाषा है वो अपने अपने जो है भाव मनोभाव मतलब एक तरह से मन में उठने वाले भावों को व्यक्त करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं लेकिन उनकी जो भाषा है केवल एक आवाज तक सीमित रह गई लेकिन मनुष्य की जो भाषा है वो विचार वो जो है एक तरह से भावों को अभिव्यक्त करने तक जो है आगे बढ़ इसीलिए मनुष्य ने जो है अपनी बुद्धि के साथ साथ भाषा को जोड़कर अपनी प्रगति कर ली है इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा मानव प्रगति की आधारशिला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मनुष्य के विकास में उसका जो है मतलब उसकी भाषा ने उसको जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाषा महत्वपूर्ण वस्तु है भाषा एक महत्वपूर्ण वस्तु है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है चीज है ध्यान रखें इसके बिना मनुष्य का विकास होना संभव नहीं था मनुष्य ने आज विज्ञान अपनी बुद्धि के सहारे विज्ञान तकनीक बहुत सारे जो है ऐसी जगह पर जो विकास किया है लेकिन उसके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है उसकी जो है क्या है ये भाषा की शक्ति काम करती है कौन सी शक्ति काम करती है
भाषा की शक्ति काम करती है। इसी भाषा की शक्ति के कारण ही मनुष्य ने अपना जो है विकास किया है। जरूरी भाषा नहीं होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता है, एक बार आप इमेजिनेशन करके देखो। ఒకసారి ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ చేయండి మీరు. ఒకసారి మానవుడి దగ్గర लैंग्वेज లేకపోతే लैंग्वेज उसने नहीं डेवलप किया होता तो आज भी हम जो है क्या है पशु पक्षियों के समान ही अपना जीवन गुजार रहे होते, पशु पक्षियों के समान ही हम अपना जीवन जो है बिता रहे होते, हमारा भी जो विकास वही तक सीमित हो जाता। ध्यान रखिए। अब हम जो है एक तरह से मनुष्य ने भाषा का विकास क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी, इसके लिए भी हमारे पास ये ध्यान रखिए, मनुष्य ने भाषा का विकास क्यों कर लिया, एक तरह से अपना सामाजिक विकास के लिए। ध्यान रखिए, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के लिए ही मनुष्य ने जो है भाषा का विकास एक तरह से कर रहा है। अपने मन में उठने वाली भावनाओं को वो दूसरों पर प्रकट करता है। अपने मन की जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों पर प्रकट करना है, लेकिन कौन दूसरा, अगला व्यक्ति। तो इसी से एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव, एक दूसरे के साथ जो संबंध बना, जो एक तरह से रिलेशन है, उसे ही हम जो है सामाजिक रिलेशन कहते हैं, सोशल रिलेशन कहते हैं। तो इस सोशल रिलेशन के लिए ही मनुष्य ने जो है अपनी भाषा को एक तरह से जन्म दिया है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। भाषा का ऐतिहासिक विकास जो है उस पे हम और अधिक विस्तार से उस पर जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को आज समझ में आ गया कि भाषा का महत्व क्या है एक तरह से मनुष्य के जीवन में, भाषा का महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में, ये हमें समझ में आया। मनुष्य ने जो भी अपना एक तरह से विकास किया है या प्रगति की है, उसकी आधारशिला उसकी बुद्धि ही नहीं है बल्कि उसका भाषा भी है। बल्कि भाषा और बुद्धि दोनों मिल जाने से ही मनुष्य ने जो है अपना ये परिपूर्ण विकास एक तरह से कर लिया है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की कि हमारे मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या महत्व है, इस पर हमने जो है चर्चा की है। उसी के संदर्भ में मनुष्य के लिए अनुपम वरदान, वरदान मतलब गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है एक तरह से। ध्यान रखिए, ये पशु पक्षियों को मिली हुई नहीं है। तो अनुपम वरदान भाषा का महत्व एक तरह से मनुष्य के लिए जो भाषा मिली हुई है, जो भाषा प्राप्त है उसको, ये उसके लिए एक अनुपम वरदान है, वरदान से कम नहीं है। ध्यान रखिए, गिफ्ट से कम नहीं है। तो भाषा का महत्व, मनुष्य, पहला वाला क्या है, मनुष्य ने भाषा के प्रयोग से ही अपना विकास किया है। यह उसे पृथ्वी पर सभी प्राणियों में बुद्धिमान बनाती है। बुद्धि सभी के पास है मैंने बताया, लेकिन भाषा के कारण मनुष्य सबसे श्रेष्ठ बुद्धिशाली बना है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यह पृथ्वी पर सभी प्राणियों से, मतलब इस जगत में, इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे बुद्धिशाली मानव को ही हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके भाषा के कारण ही। ये सबसे पहला पॉइंट। अन्य जीव जंतु केवल संकेतों या ध्वनियों का ही उपयोग करते हैं। मैंने ये बताया, अभी अभी आपको बताया, जो वेरे प्राण लेवरे उन्नारो जीव जंतुलु, वो जो है सिर्फ संकेतों का, संकेत, इशारे जिसे कहते हैं, संकेत मतलब इशारे, इंडिकेशंस, और ध्वनियों का, ओनली साउंड्स का प्रयोग कर सकते। लेकिन भाषा भावों और विचारों को पूर्ण अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है, एक तरह से भावों और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसका प्रयोग केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। भाषा भावों और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। उसके बाद अगर हम देखें, यह ईश्वर का दिया हुआ अनुपम वरदान है जो मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, जो मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। तो ये भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। तो हम ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाषा का महत्व मनुष्य के जीवन में ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भाषा को हम समझने जा रहे हैं, हम भाषा को पढ़ाने जा रहे हैं, हम हिंदी भाषा जो है सिखाने जा रहे हैं बच्चों को। तो सबसे पहले तो हमें भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का हमारे जीवन में महत्व क्या है,
इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, तभी जाकर जो हम बच्चों को भी भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्हें बता सकते हैं। देखिए, हम जो है बच्चों को हिंदी भी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, वहां पर तेलुगु भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो है अनेक भाषाओं को पढ़ाने का महत्व क्या है, ये आपको समझाना पड़ेगा एज ए हिंदी के अध्यापक के रूप में। क्योंकि आज के बच्चे उनका कहना है कि हमें तो इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश मीडियम या फिर जो है हम तेलुगु मीडियम में पढ़ते हैं, हमें इससे अलावा दूसरी भाषा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो अनेक भाषाओं को सीखने का भी महत्व क्या होता है, वो हम आगे के आने वाले टॉपिक में बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज या मल्टीलिंग्विज्म जिसे कहते हैं, उसमें हम देखेंगे जरूर, उसमें आपको पता चलेगा। तो ये भाषा का महत्व है। भाषा का महत्व के रूप में आपको हेडिंग के रूप में ये रखना है, भाषा मनुष्य को मिला हुआ एक अनुपम वरदान है। ध्यान रखिए, क्योंकि भाषा भावों और विचारों को पूर्ण अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर, क्योंकि अन्य प्राणी और जो है मनुष्य के साथ जो है क्या है, क्योंकि मनुष्य ने अपने ब्रेन के साथ भाषा को मिलाया है, इसीलिए जो है क्या हुआ, संप्रेषण, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मनुष्य का ये ब्रेन और साथ में भाषा मिल जाने से ही उसका जो है विकास हुआ है। अन्य प्राणी सिर्फ जो उनके पास ब्रेन तो है, लेकिन जो है उनकी भाषा नहीं है, उनके पास भाषा नहीं है। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई, भाषा का महत्व क्या है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आते हैं हमारा जो है इसमें मुख्य बिंदु, भाषा का महत्व तो आपको समझ में आ गया है ना। अब देखिए स्क्रीन पे आप लोग को क्या दिख रहा है, एक तरह से भाषा, भाष धातु से उत्पत्ति, भाषा का मूल अर्थ क्या है, मेन अर्थ भाषा का जो है, शाब्दिक अर्थ भी कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब वर्ड मीनिंग, वर्ड। तो भाषा, हम जानते हैं कि भाषा शब्द जो है ये संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा शब्द जो है या नाउन शब्द जो है कैसे बना है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है ये। तो ये संज्ञा शब्द जो है क्या है, भाष धातु से बना है। भाष धातु, यहाँ पर हलंत नहीं आया है, लेकिन आपको हलंत ध्यान में रखना है। भाष धातु से बना है। भाष धातु का मतलब क्या है, एक तरह से धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप। धातु का मतलब क्या होता है, క్రియ ఒక మూల రూపాన్ని ఏంటంటే మనం ధాతు అంటాము. భాష అనే పదము ఎలా వచ్చింది, ఎలా పుట్టుకొచ్చింది, ఎలా వచ్చి ఉంది అంటే, ఎలా डेवलप అయిందంటే దాని గురించి। तो भाषा का मूल अर्थ भाषा शब्द, और आपको ये भी ध्यान रखना है, हम भाषा शब्द जो यूज करते हैं ये संस्कृत का शब्द है कि नहीं। तो यहाँ पर इसलिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, ध्यान देने की बात यहाँ पर, भाषा शब्द एक तरह से संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, एक तरह से देखिए, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी या बोलना। व्यक्तवाणी मतलब व्यक्त परचड़म एक तरह से, या बोलना या स्पीकिंग। भाषा, भाष का यहाँ पर अर्थ है, ध्यान रखिए, भाष धातु का अर्थ है, भाषा का अर्थ नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, ये भी क्लियर कर लीजिए। इस पर आप लोगों को अब तक डीएससी में एक प्रश्न बना है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, एक तरह से संस्कृत से। ये पहला पॉइंट, ఇది ఒక మొట్టమొదటి क्वेश्चन ఇచ్చారు। తర్వాత రెండో क्वेश्चन ఏంటంటే भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, किस धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है, भाष धातु से। और भाष धातु का अर्थमेंटिदी यानी, इस पर भी जो है डीएससी में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोगों को आने वाले समय में भी मतलब परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न दिया जा सकता है। क्वेश्चन ఏ విధంగా రావచ్చు అనేది కూడా నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా सब लोग जो है एक तरह से नोट करके रखते जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही सामान्य अर्थ, इसका जनरल मीनिंग क्या है, एक तरह से भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का, आदान प्रदान, लेना देना। भाषा क्या है, विचारों का आदान, भावों और विचारों, भाव और विचार, भावनाएं मतलब फीलिंग्स, विचार मतलब जो है थॉट्स, ध्यान रखिए, विचार मतलब थॉट्स है और भाव मतलब जो है हमारे फीलिंग्स है, उनका आदान प्रदान करने का एक स्पष्ट और पूर्ण साधन है, एक स्पष्ट, क्लियर और कंप्लीट मीडियम है।
यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, दिस इज नॉट ओनली साउंड, ध्यान रखिए, बल्कि एक संपूर्ण अभिव्यक्ति है, कंप्लीट जो है हमारा एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ध्यान रखें। तो हम एक तरह से भाषा शब्द का मूल अर्थ जो है चर्चा कर रहे हैं। మనం ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ, భాష ఒక మూల అర్థం ఏంటిది, मतलब भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति का अर्थ क्या है, कौन सी भाषा से जो है ये शब्द बना हुआ है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भाषा का सामान्य अर्थ क्या है, भावों या विचारों का आदान प्रदान करने का एक स्पष्ट और पूर्ण साधन है, साधन मतलब एक तरह से मीडियम है। और साथ साथ में हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, भाषा शब्द जो है एक तरह से संज्ञा है, लेकिन ये भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमने यहाँ पर देखा व्यक्तवाणी, व्यक्तवाणी ध्यान रखिए, या फिर जो है जिसे हम कहते हैं बोलना, ये दो, क्लियर। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर भी दिया है, नीचे आप लोग अच्छे से देख लो, संस्कृत धातु भाष से ये बना हुआ है, यहाँ पर हलंत लगेगा, इसका अर्थ क्या है, एक तरह से व्यक्तवाणी या बोलना, और इसी से जो है फिर आधुनिक भाषा शब्द बना हुआ है, इसी से ही आधुनिक शब्द भाषा बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से पहला टॉपिक जो भाषा का अर्थ है ये आपको समझ में आया, और भाषा का महत्व जो भी है वो आपको समझ में आ गया है, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें प्रश्न भी क्या बन सकते हैं ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या हो सकते हैं, प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा, मानव के विकास में बुद्धि के साथ किसका योगदान रहा, योगदान అంటే कंट्रीब्यूशन, किसका योगदान रहा है। तो ये ऑप्शन हम कह सकते हैं पुस्तकें, दूसरा तकनीक, तीसरा हम कह सकते हैं भाषा, और चौथा हम कह सकते हैं डी ऑप्शन जो हम लिख सकते हैं प्राणी। तो क्या होगा इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन भाषा होगा यहाँ पर। तो मानव के विकास में बुद्धि के साथ किसका योगदान रहा है, तो भाषा का योगदान रहा है, ठीक। तो ये इस तरह से प्रश्न, अभी और अन्य प्रश्न हम देखें, एक तरह से अन्य प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए हम कहेंगे देवनागरी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी एक तरह से अंग्रेजी। तो इसमें ऑप्शन हमारे लिए कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, संस्कृत से। तो फिर नेक्स्ट, भाष धातु का अर्थ क्या है, अगर प्रश्न पूछा तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन है बोलना, बी व्यक्तवाणी, सी अभिव्यक्ति, डी ये सभी सही। तो इसमें क्या आंसर रहेगा,
इसमें आंसर रहेगा आपके लिए डी, ये सभी, क्योंकि अभिव्यक्ति भी है, व्यक्तवाणी भी है और बोलना भी है, ये ध्यान रखिए। इन तीनों का प्रयोग हम जो है इसमें करेंगे, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में दिए, जैसे ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन इसी से तो जर्नी हमारी शुरू करनी चाहिए। हम जो है बहुत अचानक जो है तो सीधे सीधे हम डी पर नहीं जाएंगे, गंभीर प्रश्नों पर नहीं जाएंगे, सिंपल से जो है हम कठिन की ओर जाएंगे। तो ये हमारे प्रश्नों का स्वरूप कैसे होगा इसके लिए है।